So I am here with first tense, that is present tense. When we talk about present tense, then over here we are having four types. First one is present indefinite, second one is present continuous, third one is present perfect, and fourth one is present perfect continuous. Then first of all, whenever we go anywhere, we must be having some maps in our mind, so that we can be easily understand that what the sentence is, and what sentence is saying, and what is its identity. Like that you have to keep four things in mind about simple present tense. First one is profession, second one is universal truth, third one is habitual action, and the fourth one is comparison between two person or the two things that can be said to be in simple indefinite, any present indefinite tense. When we talk about profession, then over there means profession, whatever the profession is, either the person is in medical line or the teaching line, and whatever, that is what the profession is the identity of that person. Simple things, one, you can say that he is a doctor, he is a teacher, means these sentences are also known to be present indefinite. And when we talk about universal truth, then as we know that in universal truth, all of them are knowing the fact about that is a truth. Means you can say, first example you can look at that, means you can say that the sun rises in the east. The first sentence, this sentence shows that मीन्स कि हर कोई ये चीज़ जानते हैं ना कि सूर्य जो होता है पूरब से उगता है, तो ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्क इज़ वाइट, देन मिल्क इज़ वाइट इज़ ऑल्सो अ present indefinite. So this thing you have known that profession and universal truth is what. And when we talk about the third one, that the habitual action, then it can be said that whatever the person is doing, whatever the person is performing, it must be his habit, and he must be doing it in a continuous way. Not you can say that continuous way, but he can easily do that. Means you can say that he is playing cricket, then this one is showing, means ये सेंटेंस क्या शो करता है कि वो अभी के टाइम में क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है ना. दिस इज़ नॉट शोइंग हिज हैबिचुअल एक्शन. मीन्स वो हो सकता है क्रिकेट नहीं भी खेलता हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ही प्लेज क्रिकेट, then over here we are looking that in this sentence it is showing that he plays cricket, means to say that his habit at playing cricket, means he has already done that work, and he is continuously doing that, means from a past time, and means he has played some days before. He can play that thing, or he can do that thing. Simple things you have already understand. That three things we have already told. That first one is profession, second one is universal truth, and the third one is habitual action. And the last, when we talk about that, the fourth one, that is comparison between two things, or two objects. Means you can say that you can take an example that Kabir Das is also known as Shakespeare of our country. Means over here we are talking about Kabir Das, and we are comparing through Shakespeare. That you are already understandable. Now you have known about the identity, means the four things. First one profession, second one is universal truth, third one is habitual action, and the fourth one is comparison. Okay, got it. Now when we talk about means map, you can say that structure, then we are having structure of a simple present tense. That is you can see in simple present tense, we are having six types of sentences. Means we can make six types of sentences. Over here it is mentioned three, but you can say that first one is affirmative. It is also known as
positive sentence. Okay, first one is affirmative, it is also known as positive sentence. Second one is negative, means the whatever the things you are doing, it must be carry not, that is negative, means not you can say negative facts is a negative. Okay, when we talk about the question mark, you are already aware that question marks is a question what you are asking from others, means other people or the things you can matlab say. Okay, got it. Then when we are coming through the structure, then in positive sentence we are having structure subject plus v1 v5 plus ऑब्जेक्ट, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में जो होगा स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमको पता है कि डूअर इज अ सब्जेक्ट। ओके, when we talk about the subject, then as we are aware that doer is a subject, and what is the object, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं मीन्स जो इंसान जो काम कर रहा है ना, वो काम, वो परफॉर्मेंस, वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सब्जेक्ट डूअर मीन्स जो करने वाला है वो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे v1 और v5 आपको पता है वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। हमको पता है v1 जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है सिंपल सा वर्ड होता है प्ले, राइट, लाफ, ये सब होता है। अगर v5 की बात करते हैं तो उसमें क्या लगता है एस या ईएस का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग का क्या होता है, डू डज हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। तो डू डज का यूज़ करते हैं तो डू डज में क्या होता है, डू डज एक सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरह से v1 और v5 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं v1 और v5 का। आ रहा है समझ में। तो सीधी बात है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और चेंज हो जाएगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स चेंज हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे v1 और v5 हम लोग लगाते थे पॉजिटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ v1 लगाएंगे। क्यों भाई, तो डू डज का यूज़ हमने कर दिया पहले ही। अगर सेंटेंस अगर सिंगुलर में है तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, v1। तो क्वेश्चन वगैरह समझ गए। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस समझाने से पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे सीधी बात है, आप देख रहे होंगे हिज वाइफ सेट्स द टेबल। तो हिज वाइफ है तो हिज वाइफ आपको पता है किसी की भी कितनी वाइफ होती है भाई, तो एक ही होती है ना। तो यहाँ पे हिज वाइफ हो गया तो सिंगुलर हो गया। तो सेट आपका वर्ब है तो सेट में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, तो क्या हो गया, सेट्स हो गया। तो v5 का यूज़ हमने यहाँ पे किया, हिज वाइफ सेट्स द टेबल। ओके, आ रहा समझ में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे जैसे v1 का यूज़ हम लोग कब करते हैं, v1 का यूज़ कब करेंगे, v1 का यूज़ कब करेंगे, v1 का यूज़ हमको पता है, सीधी बात है, जब यहाँ पे प्लूरल सेंटेंस रहेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, v1 का। ओके, v1 का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर कहाँ रहेगा, थर्ड पर्सन में क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, v5 का। तो जैसे v5 में हम लोग जानते हैं क्या यूज़ होता है, एस या आपका क्या यूज़ होगा, ईएस का यूज़ करेंगे, है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सबको पता है क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है बताइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको पता है ना, ही होता है, फिर सी होता है, इट होगा, है ना, और क्या हो जाएगा आपका, नेम हो जाएगा ना, किसी भी इंसान का नाम, है ना, नेम। कोई दिक्कत, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, ही सी इट और नेम। कोई दिक्कत, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अब v1 में आपको पता है सीधी बात है, एक तो प्लूरल के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ही। जैसे अब यहाँ पे आई हो तो आई में भी v1 का यूज़ होते हैं, है ना, आई, वी, यू, दे, है ना,
इसमें क्या यूज़ होगा, V1 का यूज़ होगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे V5 का यूज़, एक बात ध्यान रखेंगे, V5 का यूज़ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, है ना। किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। रुकिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ किसका यूज़ करते हैं हम लोग? V5 का। किसका यूज़ करते हैं? V5 का यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर सिंगुलर है तो ही, सी, इट और नेम। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? हिज वाइफ सेट द टेबल, पहला एग्जाम्पल आपका हो गया। तो हिज वाइफ जो हो गया, क्या हो गया? सिंपल सा आप लोग जान रहे हैं, हिज वाइफ है तो सिंगुलर है, तो सेट के साथ क्या लगा दिया हमने? सेट्स लगा दिया, मतलब वर्ब में एस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है आई लाइक फ्रूट्स। आई है तो आई के साथ हमने बताया अभी कि आई के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं, है ना। अभी V1 लगाते हैं हम लोग किसमें? वर्ब में। अब V1 क्या होता है? सिंपल सा जो वर्ब होता है, जैसे लाइक हो गया, तो आई लाइक फ्रूट्स, सीधी बात है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल जो है, वी लव फ्लाइंग काइट्स। थर्ड एग्जांपल क्या है? वी लव फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पे आपको सीधी बात है, वी हम लोग का क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ना, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या लगाएंगे हम लोग? V1 का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। माई सन मेक्स हिज बेड, माई सन है, मेक्स हिज बेड, एक सन की बात की गई है, एक बेटे की बात की गई है, तो मेक्स हिज बेड है तो क्या हो गया? यहाँ पे सिंगुलर है माई सन, तो यहाँ पे वर्ब में क्या लगाया हमने? एस या यस का यूज़ करेंगे, तो एस लगा दिया हमने, है ना। आई डोंट प्ले चेस, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो आई है, आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डू का यूज़ करेंगे। और सीधी बात है, नेगेटिव सेंटेंस में आई के साथ डू का यूज़ करेंगे ना। हाँ, अभी हम बताया नहीं था, लेकिन अभी बताएंगे, ठीक है। आई डू नॉट प्ले चेस। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सी डजेंट फील सो गुड। सी है तो सी भी सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? डज का यूज़ किया हमने। तो यहाँ पर फिर थर्ड नेगेटिव देखेंगे तो क्या है? इट डजेंट वांट टू ईट इट, इट डजेंट वांट टू ईट इट। यहाँ पे इट आपका क्या है? इट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत? डज नॉट का यूज़ करेंगे कहाँ पे? नेगेटिव में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जब हम लोग आते हैं तो क्या है? डू दे स्पीक इंग्लिश वेल। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले आ जाता है, यूज़ करते हैं हम लोग डू का, पहले यूज़ करेंगे तो डू दे है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे? डू दे स्पीक इंग्लिश वेल, है ना। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है, डज सी हैव ब्लैक हेयर। डज, अब यहाँ पे सी है, नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी सी आपका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे? डज का यूज़ करेंगे, तो डज सी हैव ब्लैक हेयर। यहाँ पे हैव आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव का यूज़ क्या किया गया है? वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, मतलब आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सॉरी। हैव आपका क्या है? सिंपल सा आपका वर्ब है ना। तो यहाँ पे V1 का यूज़ हमने किया है, हैव है ना। तो सीधी बात है, डू यू लव मी, डू यू लव मी, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? डू का यूज़ किया हमने, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या है? 25 एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे माई फादर गोज़ टू जिम एवरी डे, तो माई फादर क्या होता है? सिंगुलर है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? गो के साथ क्या लगाएंगे? एस या यस लगाएंगे। गो आपका वर्ब हो गया, तो वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या यस लगाएंगे। सी लव्स टू प्ले बास्केट, इसी तरह से इसमें भी यस लगाया हमने। सी थिंक्स ही इज़ वेरी हैंडसम, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया? एस लगाया। थिंक आपका वर्ब है तो उसमें एस लगा दिया। आई रन एवरी वीकेंड, तो समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है? सेंटेंसेस 25 सेंटेंसेस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक सेंटेंस है, आई रन एवरी वीकेंड। आई रन एवरी वीकेंड, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया 6 तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो 6 तरह का सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट आपका बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीरोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो ये 6 तरह का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहला है, मान लेते हैं आई रन एवरी वीकेंड,
तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में जब उसको चेंज करेंगे तो आई डू नॉट रन एवरी वीकेंड, डू आई रन एवरी वीकेंड, डू आई नॉट रन एवरी वीकेंड। ओके, आया समझ में? वाई डू आई रन, वाई डू आई नॉट रन, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका सिंपल सा है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट है उसमें एस लग गया तो यानी प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाया हमने। तो द स्टूडेंट्स डू नॉट वियर देयर यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट डू नॉट वियर देयर यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। तो डू द स्टूडेंट्स वियर देयर uniform, do the students not wear their uniform, uh, why do the student wear their uniform, why do the students not wear their uniform। आया समझ में? why do लगाया हमने, है ना। why के बाद आप लोग यहाँ पे द स्टूडेंट के बाद नहीं लगाएंगे, वो आपका देखिए स्पोकन इंग्लिश में चलता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर दैन अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे ना। कोई सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ पे भी क्या है? ये आपका अफर्मेटिव है, तो ही के साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव में डज लगाएंगे, तो ही डज नॉट गेट। अब यहाँ पे गेट्स था तो गेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। V1 का यूज़ करेंगे क्योंकि डज लग गया। ही डज नॉट गेट अप अर्ली एवरी डे। आया समझ में? तो डज ही गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग या एवरी डे आप कर सकते हैं, है ना। वाई डज ही गेट अप अर्ली एवरी डे, वाई डज ही नॉट गेट अप अर्ली एवरी डे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे गेट होगा, गेट्स नहीं होगा, अफर्मेटिव में से इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका रहा प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, then be careful about it, write it down and make sure your each and every tenses goes well, and you have to be very understandable. Okay, thank you so much, love you guys.